Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. बहुत अच्छी बात है. Glory to God. देखिए, Hallelujah. देखिए, जब आप दिल खोलकर परमेश्वर की पर भरोसा करते हैं, जैसे आइज़िया 40 कितना में 40 कितना से पढ़ा अभी आप लोग? 30 ना 30 ना 31 ना 31 का कितना वर्ष में? नहीं 40 का 31. देखिए वहाँ पर कहता है जो ट्रस्ट ना परमेश्वर की वचन पर भरोसा करते हैं. परमेश्वर पर भरोसा करना, परमेश्वर की वचन पर रीड द वर्ड एंड ट्रस्ट. देखिए तो वो लोग क्या कहते हैं, नया शक्ति प्रभु दे देता है. हालेलुया. देखिए इसलिए जब आप दिल खोलकर परमेश्वर पर भरोसा करने लगते हैं, एंशियस फॉर नथिंग. देखिए मगर ना समर्पण करो. हालेलुया. ट्रस्ट. When you start trusting God from your heart, from your inner being, na, something happens in heavenly realm. Yes. An unseen world, because God is the ruler of everything. He rules, He creates things for you, in favor of you. आपके फेवर में परमेश्वर सारा सृष्टि करता है, because He is the creator. He created you and He's still creating the things around you in favor of you, to bless you, to give you hope and future. Because He is the creator. He takes care of you. Whoever trusts in Him. Hallelujah. इसलिए आइज़िया 45 में हम लोग देखते हैं. आइज़िया 45 का कहाँ पर है, देखते हैं हम लोग ना, कितना में था. ओके ना, मोबाइल से देखने से अच्छा है, जल्दी मिल जाता है. ओके तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं आइज़िया 45 का कितना में है. नो 45 का नहीं 40. ओके Hallelujah, praise the Lord. Okay, let me find out the Bible. आइज़िया 45 का यहाँ पर विशेष एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ, सब मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए, हम सबके लिए. 45 का कितना में, मैं बार बार इसको कभी याद करता हूँ और देखता हूँ. 45 का यस 18 में. मैं देखिए आप इंग्लिश में है ना, करीब है ना, किसी भी ट्रांसलेशन में आप पढ़ दीजिए. For thus says the Lord who created the heavens, who is God, who formed the earth and made it, who has established it, who did not create it in vain, who formed it to be inhabited. I am the Lord and there is no other. Amen. देखिए who created everything not in vain. देखिए वो उस परमेश्वर ने उद्देश्य से बनाया आपको, और परमेश्वर का उद्देश्य है, इसलिए you know ना His plan. God says I know my plan for you, not to harm you but to give you hope and future. देखिए He creates your future. He creates my future, our future. ना देखिए हमारे बच्चों के भविष्य को परमेश्वर ही बनाता है. यस हालेलुया. जैसे होयल से मैंने ना पहले से उसको पता होता ना कैसे और भी ना कर सकता था. सी हालेलुया. सो यू कैन मेक योर फ्यूचर, इतना सुंदर आप बना सकते हो. यू कैन क्रिएट things because God creates. God is the creator of everything. He has created you for His purpose, not in vain. So you are here in the church not in vain. बिना कारण से आप परमेश्वर के पास इस कलीसिया में आया है, वैसे नहीं. बिना कारण से आपको परमेश्वर ने जन्म दे दिया है संसार में, वो नहीं है. बहुत सुंदर है परमेश्वर का उद्देश्य, so glorious. उसके लिए आपको क्या है, दिल से पागलपन दिखाना है परमेश्वर को. हाल इतना ही है. Your part is to show your craziness, your heart, dedication, supplication, and sing from the heart. So when you do that,
In heavenly realm, something is happening. Hallelujah! God is creating. Hallelujah! God is creating in heavenly realm because He is the creator. Because you are allowing Him, because you are trusting Him. When you trust with you all your heart, with all your mind, with all your soul, in you it depends on you, in your heart, what you desire. Your faith in the Word of God, His promises, you just trust, rely. ना आपको निर्भर करना है संपूर्ण मन से. Oh, God creates greater things you're going to see. In this 2025, you're going to see you in your life. Gracious, glorious things are going to happen. Heaven's favor is upon you. By the grace of God, heaven is hovering upon you. Hallelujah. स्वर्ग आपके ऊपर मंडला रहा है. Day and night. To give you future and hope, my child, my daughter, my children, trust me with all your heart, with all your mind. Trust me. परमेश्वर ये कहता है आपको, ना? I am the living God. I am the creator of heaven. I create things for you, for your favor. Hallelujah. ना? परमेश्वर ये कहता है. इसलिए आपको हमको क्या है? थोड़ा सा समय आपको क्या है? परमेश्वर की तरफ देना है. जब आप गाते हो बजाते हो दिल खोलकर, you want to cry, you feel crying, cry. रो दीजिए, you want to cry, you feel crying, रो दीजिए. You will trust. Because Holy Spirit, when you संपूर्ण मन से आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, then Holy Spirit, पवित्र आत्मा, God is strengthening you. Hallelujah. So you become different person. Hallelujah. Things start happening. Hallelujah. जो आप बरसों से कोशिश कर रहे, सोच रहे ऐसा होता है कि मिनट में, सेकंड में, that things can happen. Hallelujah. 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 देखिए इसीलिए देखिए God is God of all flesh. God is God of glory. God is God of all grace. सारा अनुग्रह का परमेश्वर, वो सब कुछ आपको अनुग्रह देकर आपको सब कुछ बना सकता है, सिखा सकता है, खड़ा कर सकता है. हालेलुया. महीने में आपको जीने के लिए हायर लेवल में, आत्मिक स्तर में आगे बढ़ने के लिए He helps you, He strengthens you. जब आप थोड़ा सा समय देंगे परमेश्वर को, दिल खोलकर ट्रस्ट करेंगे. Lord, I trust you. संपूर्ण हृदय से मैं आपका वचन पर मैं भरोसा करता हूँ. When you start trusting the word of God, परमेश्वर के वचन पर, and speak that word in faith, Lord, it's going to happen. Yes, Lord. Yes, I believe this for me. ऐसे आप ना आइजिया 40 का उसमें 31 में पढ़ा ना, trust the word of God. Word of God को लीजिए. Yes, speak that word for yourself, and then when you speak in faith, देखिए, something is happening. So when you speak. Sometimes, if you believe, you speak in tongues. You in your heart, in your mind, it's already working. God is working, and God has given you this thought, the heart's desire in you. God has put it in you. Nothing is too hard for the Lord. Bible says, is there anything too hard for the Lord? परमेश्वर का वचन कहता है कोई कठिन काम नहीं है परमेश्वर के लिए. Anything you believe, it can happen. Hallelujah. वो शाबा खसा जो thinking को लीजिए और अन्य भाषा में वो खाबा शाता था था रिशु कोसा का साता था और राव खोली थी दिशा को बरस हर विषय को तो प्रार्थना करिए, tongues में प्रार्थना करिए, declare करिए, because you are praying in unknown language which you don't know how to pray. That unknown language of प्रार्थना करते हैं, there you are praying perfect prayer. Hallelujah. You are declaring His glory. You are declaring His word. जब आप 2 मिनट से शुरू करिए, 15 मिनट, 20 मिनट चाहिए, आधा घंटा चाहिए, 1 घंटा, 2 घंटा चाहिए, देखिए आपके जीवन. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Start doing that. Start doing that. ना और जब आदमी अन्य भाषा में आप प्रार्थना करते हो ना, मैं ना देखिए ना, we can give thought details, ताकि हम लोग दे सकता है तो फिर आत्मा ये
स्पीकिंग थंग्स, वो सारे हम लोग सब भंडार परमेश्वर ने भर दिया है। हम लोग समय है तो हम लोग सब कुछ दे सकता है सब कुछ निकाल के। मगर मैं आपको इफिशियंस 5:22 में से ना मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। I want to show you, so that you can be filled with the Holy Spirit. Do not be drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. देखिए पवित्र आत्मा आपने पाया है, मगर आप ऐसे रहेंगे हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड नॉर्मल नहीं, आपको अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। आहिस्ता आहिस्ता इधर से उधर से डिस्टर्बिंग स्पिरिट आपको टाइम माइंड में आपको अंतर नहीं, आपकी धार्मिक है, धार्मिक आत्मा है ना, मगर बाहर थिंकिंग में आपको गोलमाल करने के लिए कोशिश करता है। शैतान क्या करता है? वचन को चोरी करने के लिए कोशिश करता है, स्टील द वर्ड ना। देखिए देन ना शांति को क्या क्या बाकी सारा ना चोरी करने के लिए कोशिश करता है ना, मगर परमेश्वर की वचन को देखिए। इसलिए क्या है? बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। अब वचन को थामे रखे, डिक्लेयर द वर्ड। I'm more than conqueror, Christ is in me, greater who that is in me is greater than that is in the world। आपको ये बाएं हाथ करिए जैसे अभी नीता ने 40 का ना 31 को याद किया भरा, इसी तरह ना जब 1 John 4 को याद करिए। बोले माय चिल्ड्रन कहता है परमेश्वर आपको, अपना बेटा बेटी कहता है you are forgiven, that means you are righteous, that means completely you are totally you are God's child। परमेश्वर का बेटा बेटी हो, you are not no longer a sinner, you were a sinner, but now you are righteous, your spirit is righteous, righteous spirit is in you, you are righteous, your spirit is righteous। so thinking को क्या ना, हर thinking को क्या करना है? पोजीशन बनाना है। thinking को thoughts को पोजीशन करना है। yes, align with God, renew your mind। इसलिए ये सब करने के लिए आपको क्या है? डिक्लेयर करना है। क्या है? पढ़िए कहाँ पर ना इफिशियंस 5 का कितना पढ़ता है ना, मेरा पढ़ दीजिए, मेरा है do not get drunk with wine बनना है, सभी उसको भी पढ़ दीजिए ना, आगे पीछे हो सकते हैं। मैंने Do not be drunk with wine, which is in dissipation, be filled with the Spirit। filled the Spirit। देखिए आत्मा आपने पाया है और आत्मा में परिपूर्ण होते जाना है, क्योंकि आपको विश्वास को पकड़ के रखना है आत्मा के साथ और वर्ड ऑफ गॉड टुगेदर। You have the Spirit, you are righteous Spirit in you, you have Holy Spirit with you, so now stick to the word ना, बोलता है be filled with the Holy Spirit। do not get ना, जैसे ना बोलता है क्या रक्सी खा करना, वाइन खा करना, क्या बोलता है वोडका खा कर, क्या बोलता है दारू पी करना ना ड्रंक हो जाता है ना, वैसे ड्रंक नहीं होना है, मगर उससे भी पावरफुल ड्रंक क्या हो सकता है? आत्मा में ड्रंक होता है। हालेलुया। आत्मा में ड्रंक होना, इतना खुशी इतना आनंद से भर जाएंगे, खुरे अवसंदर हालेलुया, आप अलग व्यक्ति हो जाएंगे। हालेलुया। लाखों में एक हो सकता है। Yes। If you want to be बहुत ही सुंदर, बहुत ही हैंडसम आप बन सकते हो यीशु में। हालेलुया। आपके जीवन को परमेश्वर को बनाने दीजिए, पागलपन दिखाइए परमेश्वर के लिए, समय दीजिए, थिंक परमेश्वर के लिए, थिंक परमेश्वर के वचन को आप सोचिए। हालेलुया। बनाइए यीशु के साथ अपने जीवन को बनाइए। देखिए कहता है ना, उसके बाद ना, उसके बाद क्या कहता है ना, आत्मा में गीत गाइए, स्पीक इन टंग्स ना। देखिए पौल कहता है मैं आत्मा में भी गाऊंगा ना, प्रार्थना करूंगा और या ना बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। So why Paul became Paul? He spoke in tongues. ना वो बोलता है आत्मा में भी गीत गाऊंगा, आत्मा में भी होकर गाइए ना, प्रार्थना करिए। मैंने कहा 2 मिनट से 2 शब्द से शुरू कर दीजिए। डू नॉट डाउट, ब्रेन को यूज मत करिए ना, ब्रेन को स्टॉप, चुप बोलिए ब्रेन को ना। जो 2 शब्द वो कर लिया तो अरे विकास इतना ही बोलना आप करिए। जब आप करते रहते, क्योंकि यू हैव स्पिरिट, होली स्पिरिट इन यू, योर स्पिरिट इज राइचियस स्पिरिट एंड विद होली स्पिरिट टुगेदर जीसस इज इन यू, creator of heaven and earth is in you, greater is in you, and when you speak, you have faith this, but brain को बंद कर दीजिए, bypass कर दीजिए। Spirit is praying according to perfect will of God, प्रार्थना कर रहे हो। And the question, अब क्या आप पर आत्मा जानता है आपकी मनसा क्या है, आपके दिल की मनसा क्या है, what you desire in your hearts, in your inner being, उसको लीजिए, अंदर है, उसको शब्दों में आप प्रकाश नहीं कर सकता है। You speak in tongues. God knows your heart's desire. God knows what you're thinking.
ना थिंकिंग वो भी लाइन में लेके आई, बसन में लाइए, और योर डिजायर एंड योर थिंकिंग ब्रिंग इट और ना ऐसा करें। देखिए ना सिचुएशन इन हेवनली ना क्या है, प्लेस में क्या है, सब ठीक ठाक ठीक ठाक ठीक ठाक ठीक ठाक ना प्लेस हो जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा है, देखिए ये बहुत जरूरी है, उस लेवल में जाना जरूरी है, यही है अनदर लेवल, हायर लेवल। हालेलुया, कीप गोइंग देयर, कीप डूइंग दैट, वी बिकम आप बन सकते हो। परमेश्वर यही तो बनाना चाहता है, इसीलिए आप इस सेलिब्रेट चर्च में इसीलिए हो आप। हालेलुया, बिकम दैट पर्सन रूलर। देखिए इसलिए होता है, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा और पीछे जाके उसको ना, ये थोड़ा हाई जगह है, अभी थोड़ा सा पीछे जाकर हम लोग थोड़ा स्टडी में जाते हैं। मतलब इसीलिए वो कहता है सीक यू द किंगडम ऑफ गॉड फर्स्ट एंड हिज राइचियसनेस, परमेश्वर की राज्य और धार्मिकता खोजो। बाइबल बताती है ना, पहले परमेश्वर की राज्य और धार्मिकता को खोजो। ठीक है, कहाँ पढ़ता है ये? वाओ, मैथ्यू ना, मैथ्यू ना 6 ना कितना 30 ना। इसलिए बोलता है परमेश्वर ने ना परमेश्वर की राज्य और धार्मिकता को पहले खोजने के लिए बोला, सीक यू द किंगडम ऑफ गॉड फर्स्ट एंड हिज राइचियसनेस। देखिए परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता को खोजो। देखिए मैं मेरा खुद का प्रचार सुन रहा था, मैं 3-4 साल पहले मैंने जो प्रचार किया ना गुवाहाटी में ना आसामेस में चर्च में, मैं प्रचार सुनकर मैं धार्मिकता के बारे में ये पास्टर माइक का प्रचार कर रहा है और मैं खुद सुन रहा हूँ और मेरे को वाह विश्वास, मेरा खुद का प्रचार सुनकर मेरा विश्वास मजबूत हो गया। I got the strength just listening my preaching। धार्मिकता बोली, धार्मिकता बोली, धार्मिकता यस, इंग्लिश में राइचियसनेस। सो परमेश्वर प्रभु ने बोला सीक यू द किंगडम ऑफ गॉड इन एंड हिज राइचियसनेस। किंगडम ऑफ गॉड इज इन राइचियसनेस। जहां पर धार्मिकता है वहां पर परमेश्वर के राज्य है। सो यू हैव द राइचियसनेस ऑफ गॉड when you believe God, Jesus, when you confess Jesus my Lord and Savior, that very moment God has given you righteousness, gift as a gift। जैसे आपको ऐसे मैं जो दे दूँ ना गिफ्ट ना, मान लीजिए मैंने बाइबल को आपको दे दिया गिफ्ट, so this is gift for you, so you can use it or not use it ना, but this is your gift। so when you use it, when you study it, जब आप इसको ना यूज करेंगे, देखेंगे, स्टडी करेंगे ना, then you know the righteousness ना, when you know the righteousness then you have the power in you। हालेलुया। तो यहाँ पर कहता है righteousness is all about God demanded righteousness। परमेश्वर ने बाइबल में हम लोग देखते हैं धार्मिकता को क्या करो ना, ढूंढो। हालेलुया। धार्मिकता बाइबल में हम लोग परमेश्वर के राज्य में धार्मिकता नहीं है तो परमेश्वर के राज्य में भी नहीं है। मैं इसलिए मेरे को याद आता है ना, जब ना एक उदाहरण दिया था यीशु मसीह ने संसार में जब थे, तब वे शादी के भोज में गया ना, वेडिंग ना भोज में गया, वहां पर एक को देखा बिना ड्रेस का बैठा हुआ है, उसको बोला ये इसको आउट करो, फेंक दो उधर। robe of righteousness, this cloth, उसके ड्रेस पहना नहीं दिया का, तो उसको निकाल दो, फेंक दो। तो that's the gift of righteousness, the पोशाक, धार्मिकता का पोशाक पहन लो। हालेलुया। ये धार्मिकता God demanded in धार्मिकता पुराना नियम में, और परमेश्वर ने नया नियम में यीशु के द्वारा दे दिया एज ए गिफ्ट। देखिए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए और परमेश्वर ही क्या है धार्मिकता को कहाँ पर थे बस ना, आइजिया कितना में है, लेट्स रीड आइजिया कितना में है ना धार्मिकता को ना वो निकलने के लिए ना आने देगा, cause righteousness too। ओके, हो हालेलुया। मैं आइजिया कितना में है उसको निकालते हैं।
आइजाया वर्स को 60, yes, 60 का 11, अच्छा 60 का, थैंक यू लॉर्ड ना परमेश्वर याद करने के लिए दिया। 61 का 11 पढ़ दीजिए कोई। I just want to make you involved. Yes, please. For as the soil makes the sprouts come up, and the garden causes seed to grow, so the sovereign Lord will make righteousness and praise spring up before all the nations. All the nations, देखिए सुपरीन लॉर्ड क्या करने जा रहा है। देखिए आइज़ाया ने भविष्यवाणी कर दिया उस समय जब यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था। What God was planning, देखिए God demanded righteousness के बगैर परमेश्वर के साथ एक हो ही नहीं सकता है। जितना भी करो मरो ना प्रार्थना करो धार्मिकता के सिवाय आपको परमेश्वर ना देखिए परमेश्वर के साथ होना है तो धार्मिकता, और मनुष्य कोई धार्मिक नहीं हो सकता है। बाइबल बताता है कोई धार्मिक नहीं है, वो सब श्रापित है, सब पापी है, परमेश्वर से अलग है। देखिए लोग इसमें बहुत कंफ्यूज है। होल द बॉडी ऑफ क्राइस्ट ना संसार में अभी भी मेजॉरिटी आर सो कंफ्यूज ना। पीपल आर ट्राइंग टू बिकम राइचियस, बट दैट राइचियसनेस इज सेल्फ राइचियसनेस। गॉड कैन नॉट एक्सेप्ट इट, गॉड कैन नॉट रिसीव ना। पीपल who are trying to become righteous, this is filthy rag ना, लतरा ना, खराब लतरा ना, क्या है, खुरा है वो ना, मैला है, उसको परमेश्वर बोमी करता है। इसीलिए what he has done, परमेश्वर ने योजना बनाया ना अभी मैं अपने बेटा एकमात्र पुत्र को अभी दे देता हूँ ना, righteousness धार्मिकता को आने देता हूँ संसार में। वही बोला देखिए यहाँ पे कहता है and for as the earth bring forth her bud, as the garden grows the things that are sown in it. Spring forth, जैसे पानी बरसता है उसमें ना, बीज बोता है, seeds are sown and then what ना rain comes and then ना sprout comes up ना, ऐसे होता है। वैसे ही परमेश्वर ने बोला मैं अभी I will cause righteousness and praise to spring forth. अभी मैं धार्मिकता को और मेरी प्रशंसा को अभी मैं निकलने देता हूँ। Hallelujah. I'm going to cause it to come up, spring forth before all nations. सारी जातियों के बीच में मैं अपनी धार्मिकता को अभी मैं प्रकट करने जा रहा हूँ। Hallelujah. Praise the Lord. इसलिए देखिए धार्मिकता is a revelation. We have to know, the body of Christ has to know. परमेश्वर की इस धार्मिकता को न मंडली को जानना जरूरी है। इसको नहीं जानेगा कोई मतलब वो क्रिश्चियन हो ही नहीं सकता है, क्रिश्चियन जीवन जी ही नहीं सकता है, क्योंकि कठिन है, शैतान भी है, वो जी ही नहीं सकता है। वो ऐसे 4 साल से हो गया ना, वो 28 दिन से हो गया नहीं, सब अच्छी बात है, अच्छा लगता है, मगर वो उसकी पर्सनल जीवन में वो जी ही नहीं सकता है, बहुत कठिन होता है। देखिए यहाँ पर तो इसलिए धार्मिकता को परमेश्वर ने बोला मैं भी धार्मिकता को मैं प्रकट करूंगा। देखिए इसलिए यीशु मसीह ने पहला वचन जब बोला seek the kingdom of God and righteousness, everything सब आएगा। तो मैंने जब इस वचन को सुना, वाह धार्मिकता में मेरे लिए एवरीथिंग जो मुझे चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, हीलिंग चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए, ना सपोर्ट चाहिए मिनिस्ट्री करने के लिए, ना हालेलुया सारा संसार में जाने के लिए, हालेलुया प्रचार करने के लिए, जैसे परमेश्वर ने मुझे भी कॉलिंग किया है ना सारा संसार में जाने के लिए, वो सब जाने के लिए क्या है, फाइनेंसेस, फ्रेंड सर्कल चाहिए ना, सपोर्ट चाहिए। तो ये सब ना मैंने देखा हाँ धार्मिकता में है, तो है ना ये धार्मिकता को मैं विश्वास करके उसको स्वीकार करूं, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद बोला पहले seek the kingdom of God and his righteousness ना, उसकी राज्य धार्मिकता धार्मिक देखिए अभी क्या है, सीख बोला, ढूंढो बोला, अभी पुराना नियम में देखते परमेश्वर धार्मिकता को आने देगा, प्रकट होने देगा। अब यीशु मसीह आ गया
क्रूस में मरने से पहले बोलता है पहले तो ढूंढो परमेश्वर की राज और उसकी धार्मिकता। फिर इधर रोमन में बोलता है धार्मिकता आ गया। हालेलुया। रोमन में बोलते हैं धार्मिकता आ गया। रोमन कहां पर था ना, कहां पर था रोमन, धार्मिकता आ गया ना। अभी वो शायद 10 में है, रोमन का 10 है क्या, है ना। 10 verse 10 chapter 10 4 4-5 में देखिए, पढ़ लीजिए प्लीज, लिखिए। For Christ is the end of law for righteousness to everyone who believes. For Moses writes about the righteousness which is of the law, the man who does those things shall live by them. Oh, okay. Christ is the end of the law for righteousness, those who believe. देखिए, ख्रिस्त यीशु ही है व्यवस्था का अंत धार्मिकता के लिए। अभी क्या है, धार्मिकता को ग्रहण करने के लिए क्या है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। Okay. Okay, so no, I have missed it somewhere. छः में बोलिए, पढ़िए 6 में, यस 6 में, what I said, 6 verse 6 में। Romans 4 का 6 नहीं, 10 का 6, 7। But the righteousness that is by faith says, do not say in your heart, who will ascend into heaven? That is to bring Christ down. Or who will descend into the deep? That is to bring Christ up from the dead. देखिए 8 भी पढ़ लीजिए। But what does it say? The world is near you, it is in your mouth and in your heart. That is the message concerning the faith that we proclaim. This is proclaimed, ये प्रचार किया गया। अभी ये धार्मिकता आपके पास आ गया बोलता है, आपके नजदीक आ गया, आपके दिल में है, अभी कहाँ है, आपके मुंह में है। से इसलिए वो मत्ती जी के 33 को, ये इसको अगर नहीं जानेंगे तो समझेंगे नहीं उसको ना। To understand that Matthew 6:33, seek ye the kingdom of God first and his righteousness, ढूंढने के लिए कहता है। अभी बोलता है रोमन 10 का 6, 7, 8 में बोलता है अभी आ गया। कहाँ आ गया, अभी स्वर्ग में नहीं है बोलता है, अभी आ गया, आपके पास आ गया, बोले आपके नजीक में, आपके मुंह में है, आपके दिल में हो। हालेलुया। तो इसलिए बोलता है जो दिल से विश्वास करेगा वो धार्मिकता के लिए दिल से विश्वास करना पड़ता है। यस, ही हैज ब्रॉट दिस राइचियसनेस। पुराना नियम में बोला मैं आने दूंगा धार्मिकता और प्रशंसा। अभी नया नियम में रोमन इसमें देखता है परमेश्वर ने क्या किया, पौल कहता है प्रचार के द्वारा आगे आ गया। पौल बोलता है मेरे प्रचार के द्वारा आपके पास आ गया। हम लोग पौल का प्रचार कर रहे हैं, ये माइका का प्रचार नहीं है। बाइबल का पौल का प्रचार है ये इसलिए ये बाइबल कॉलेज में इसको काट के फेंक दिया था। इसको बाइबल कॉलेज में कोई भी नहीं पढ़ा, काट के फेंक दिया इसको। किसी को भी ना, कोई भी कॉलेज में नहीं पढ़ाया। आई विल टेल यू, बार बार इसको बार ना आपको जानने के लिए, याद करने के लिए बाइबल कॉलेज में नहीं पढ़ाया, इसीलिए लोग इसको जानता ही नहीं है। क्योंकि इसको समझता नहीं है तो उसको काट के फेंक दिया ना। बाइबल में है, बाइबल से तो हटा नहीं पाया, वो सेक्टर को उसको छूता ही नहीं है। ये है प्रॉब्लम। एज अ होल बॉडी ऑफ क्राइस्ट चर्चेस क्यों इतना मतलब क्रेजी में है, क्यों तकलीफ में है? ओरिजिनल गॉस्पेल को टच ही नहीं किया। देखिए इसीलिए चर्चेस आर फेसिंग प्रॉब्लम ना, नीचे 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 डिफीटेड हारा हुआ ना। हाय आप न्यूज़ में पढ़िए, कहीं भी सुनिए, एवरीवेयर डिफीटेड। मगर वैसे परमेश्वर ने नहीं बनाया था, क्योंकि ऐसे बन गया। क्यों? क्योंकि ये गॉस्पेल को, ओरिजिनल गॉस्पेल को छुआ तक नहीं, did not touch this gospel। देखिए इसीलिए बोलता है, पॉल ने बोल रहा, सी
That's what I have proclaimed to you. It has come to you, brother. देखिए बात एक में बोलता है, what said is the word is nigh thee, even thy mouth. तेरे मुंह में, देखिए फर्स्ट क्या है? मुंह में. इसको भी देखना है. फर्स्ट कहाँ पर है? मुंह में. बोले मुंह में. हाथ है? आपका मुंह है? मुंह में डालिए. फर्स्ट मुंह में बोला, पॉल ने बोला मुंह में है. ये वचन आपको मुंह में होना चाहिए. नंबर 1. उसका मतलब आपको बोलना आना चाहिए, बोलना चाहिए. यू मस्ट स्पीक दिस वर्ड. ना कौन सा वर्ड? धार्मिकता. यीशु ने आपको धार्मिकता दिया. बोले यीशु ने मुझको धार्मिकता दिया. धार्मिकता मेरे पास आ गया पॉल के प्रचार के द्वारा. देखिए नजीक में, इवन दाई माउथ, उसके बाद इन दाई हार्ट. मुंह में आने से आप जब कन्फेस करेंगे क्राइस्ट इज इन मी, क्राइस्ट राइचियसनेस, क्रिस्ट का, यीशु मसीह का धार्मिकता मुझ में है बोलने से आपके अंदर हृदय में आ गया. जब तक आप मुंह से नहीं बोलेंगे आपके हृदय में जगह नहीं मिलेगा. देखिए स्टेप बाय स्टेप. तब आपने स्वीकार किया, मुंह से अंगीकार किया, तो आपके दिल में आ गया. अभी दिल में आ गया, बाइबल बोलता है आपने दिल से विश्वास किया, पहले मुंह से अंगीकार किया. धार्मिकता, क्योंकि पॉल ने प्रचार किया धार्मिकता यीशु में है. धार्मिकता मुंह से स्वीकार किया, आपने स्वीकार किया. आपको इसलिए धार्मिकता स्वीकार करना चाहिए. दिन भर में 1000 बार नहीं होने से भी 100 बार ना स्वीकार करना चाहिए. तब क्या है? आपके दिल में धार्मिक 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 धार्मिक. तब आप ये सब स्वीकार करेंगे तो you're submitting, yielding yourself to the righteousness of God. Heaven's power is working on you, in you, and giving you power to walk in the path of righteousness. ये है, this is the gospel. दिल में है. अभी बोलता है 10 में पढ़िए. अभी दिल से 10 में पढ़िए. अभी हाँ, रोमन 10:10. यस, कोई भी पढ़िए, जल्दी जोर से पढ़ दीजिए. जितना आवाज है, माइक से भी ज्यादा आवाज में पढ़ दीजिए. मौका है चिल्लाने का. पढ़िए प्लीज. क्योंकि धार्मिकता के लिए हाँ, मन से विश्वास किया, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है. उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है. ये 2 सेंटेंस तो है. बार बार इसको याद करिए ना. 2 सेंटेंस ओनली. For righteousness you have to believe from your heart. For salvation, for righteousness to be established from, you confess with your mouth, then you are made righteous. कैसे धार्मिक हो गया? बिना पैसा में, बिना मेहनत. आपने विश्वास किया, गॉस्पेल को सुना. This Paul preached gospel. Go, you have heard this. Now I am preaching. Paul is preaching to us. Now I am preaching his gospel. He received it from heaven. वो पीटर से नहीं सीखा ये प्रचार को. बाइबल tells us he received from heaven. जहाँ कहाँ पर है बोल दूं, उसको याद रहेगा. बाद में मैं पूछूंगा तो आपको बताना पड़ेगा कंडीशन. मैं बाइबल स्कूल में टीचर था, इसलिए मैं जानता हूँ. I was school teacher. So I used to tell students, teach students, and then give them homework. Sometimes give them classwork. So now I'm giving you classwork, homework. ना याद रखेगा, याद रखेंगे. You will remember. कहाँ पर है? Let me think. Hebrew 12:25 देखिए. Paul received this gospel not from Peter. वो यीशु का चेहरा में भी नहीं था. 12 चेहरा में भी पॉल नहीं था. वो तो रास्ता में उसको उठाया. रास्ता में उसको गिरा दिया. स्वर्ग का लाइट उसको चमका दिया. यीशु मसीह खुद आया और गिर गया, अंधा भी हो गया ना. 3 दिन के बाद फिर ना उसको ना एक साधारण आदमी को भेज दिया. प्रार्थना करो उसके लिए. आँख खुल गया. तो उसको जंगल में ले गया. परमेश्वर ने उसको सिखाया. वो किसी गुरु से नहीं सीखा. जीसस 25 में हमारे कार्यक्रम में ना. देखिए पढ़िए. हाँ देखिए, इसलिए ये गोस्पेल ना, ये गोस्पेल 12:25. सावधान रहो. हाँ, और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, हम्म, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के
चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़ कर न बच सके तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाला से मुंह मोड़ कर कैसे बच सकता है? अभी देखिए बोलता है ये गॉस्पेल को सुनो, सीरियसली वार्निंग किया। जब संसार में ऐसा उनके ना वो लोग जो विश्वास नहीं किया वो लोग भी बच नहीं पाया। अब भी बोल कहता है ये गॉस्पेल तो मैंने स्वर्ग से मिला, स्वर्ग से चेतावनी दिया, इसको अगर कोई विश्वास नहीं करेगा तो बचेगा ही नहीं। इसको कोई अगर नहीं सुनेगा, विश्वास नहीं करेगा तो बचेगा ही नहीं। कैसे बच सकता है? पॉल ने बोला कैसे बच सकता है? नहीं बच सकता। ये गॉस्पेल इतना सीरियस है। ये जो गॉस्पेल आपको मिला है ना, ओरिजिनल गॉस्पेल है ये पॉल ने पीटर से नहीं सीखा। कि गॉस्पेल डायरेक्ट स्वर्ग से, यीशु मसीह जो पुनरुत्थान हुआ, यीशु मसीह डायरेक्ट स्वर्ग से उसको ये गॉस्पेल सिखाया, एक सिखाया। पवित्र आत्मा का वरदान के बारे में सिखाया, प्रभु उसके बारे में सिखाया, सारा देखिए रहस्य, किंगडम रहस्य के बारे में सिखाया। हालेलुया पॉल ने, हालेलुया। देखिए इसलिए पॉल बोलता है, अभी देखते हैं, अभी हम लोग रोमन 10 में हैं। धार्मिकता की क्या है? हृदय से विश्वास किया जाता है। आपने हृदय से बोल विश्वास किया यीशु मसीह और मुंह से अंगीकार किया। अभी क्या करना है? मैं धार्मिक, यीशु की धार्मिकता मुझ में है। आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। ये आपको स्वीकार करना है। बोले आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। क्योंकि यीशु मसीह वो धार्मिकता, स्वर्ग का धार्मिकता लेकर आया। देखिए प्रकट होने देगा बोला ना, हम कहां पर पढ़ा था हम लोग? आइज़ाया 61 का 11 में पढ़ा ना, प्रकट होने देगा ना, oh it will spring forth, I will cause to come ना, वो righteousness ना, spring forth and praise करेगा, परमेश्वर की महिमा करेगा। ये धार्मिकता को लेकर, धार्मिकता के लिए परमेश्वर की महिमा करेगा। देखिए मैं करने दूंगा, सारे जाति लोग मेरे प्रशंसा करेगा। आइज़ाया 60 में भी है, 60 में भी है ना, धार्मिकता के बारे में। सब लोग, तेरे लोग, परमेश्वर के लोग धार्मिक होंगे। कैसे? यीशु ख्रिस्त को, आइज़ाया 53 में बोला यीशु ख्रिस्त को मार दिया जाएगा, संसार का पाप उसको दे दिया जाएगा ना। You can become greater preaching than Micah। आप लोग ना मेरे से ज्यादा अच्छा प्रचारक बन सकते हो आप लोग। Yes, yeah, already you are na greater na than Micah na। I can see that। Hallelujah, you can become। Hallelujah, praise the Lord। हम लोग ये चले, हम लोग शायद ऐसा चर्च नहीं है कि हम लोग चेलापन में विश्वास करते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए, to make disciple। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए इसीलिए दिल से विश्वास करना जाना धार्मिकता के लिए बोला, और उसको स्वीकार करना है, righteousness of God in Christ Jesus। आप बोलेंगे, so you are yielding yourself to become the servant of righteousness। पहला पाप का दास था, now you have become the servant of righteousness। Hallelujah। So God's glory, you are in the glory when you believe this, when you confess this, you are in the glory, you are one with God, you are one with God, you आप महिमा में हो, you think you are spirit। आपको पता होना चाहिए कि आप आत्मा हो। बोले मैं आत्मा हूँ, क्योंकि आपका आत्मा धार्मिक हो गया। You are in the glory। देखिए आपको उसमें चढ़ने की सोचना नहीं है। मैं कभी ना, मेरे को भी जब कभी वीक लगता है तो ना चढ़ने के लिए सोचता है ना, उसमें चढ़ना ही नहीं, आपको चढ़ना नहीं है वहां पर सीढ़ी जाकर देने। आपको क्या है? नो द ट्रूथ, सत्य को जानना है। परमेश्वर ने क्या किया? आप तो मरे हुए थे ना पाप में, यीशु ने क्या किया? हमारे पाप को ले लिया, मर गया, आपको उठा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने जस्ट रिसेंटली मैंने जब ये रेवलेशन, परमेश्वर ने मेरे को तो उठाया, वहां पर रख दिया। अबे मेरे उठने की क्या जरूरत है वहां पर? I have to know the truth only। मुझे उठाया गया, आपको उठाया गया, कीचड़ से, पाप से मरा हुआ था, उठाया गया। तो now you have the hope of glory। मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करता है। इसलिए बोलता है ये धार्मिकता रहेगा, मिरेकल, अब तक मिरेकल आपको मिलेगा।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जीरो से हीरो बन जाएंगे, हीरोइन बन जाएंगे ना। ऐसा नहीं कि आपको ना पूरा हेमा मालिनी जैसा सुंदरी बनना है, वैसा नहीं ना। यू ऑलरेडी मेड राइचियस, यू आर ग्लोरियस। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड ना। ऐसा भी समय आएगा, हाँ, कोई आपको कहना यू आर द क्वीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया ना। कोई आपको क्वीन माने, और वाह सबसे सुंदर सुंदर, सबसे सुंदर जो हम जब वैसे he creates things, हालेलुया, हालेलुया। जैसे मेरे को उधर पास्टर लोग बोलता है, एक दोस्त रिसेंटली मैंने भेजा भी, ये पास्टर ऐसा बोल रहा है, how you remain so strong in faith in the grace, how come my God, I call you my friend। बाहर का एक पास्टर को बोलता है, मैंने व्हाट्सएप में भी दिया था सर, you have lots of this problem, but you are so strong in faith। So that's the thing, when you remain in that faith, nah, you will be there in the glory. Time comes, people, kings will come to you, hallelujah, praise the Lord। कहाँ पर है किंग्स विल कम टू यू बोला? आप जब विश्वास में साइन करने लगा ना, आप विश्वास को तामने पकड़ के रखेंगे, ओ ग्लोरी में रहेंगे। The kings, God will send the kings, the influential people, powerful people ना। देखिए रुपया पैसा वाला powerful people God will send to you, people will come to you। आइए कहाँ पर था? 61 में ही है ना, arise and shine बोला 3 पद में। एक में है arise and shine, now righteousness has come to you। आपको चले नीचे हम तो नहीं है, पापी है भाई, पापी है जैसे दूसरा लोग बोलता है वैसे आपको नहीं बोलना है। हम righteousness है भाई, righteousness आपको बोलना है। You are in the glory, आपको बोलना है I am in the glory according to His riches and glory, my God shall supply all my needs according to His riches and glory। Now you are in the glory, you are being seated in the heavenly places in Christ Jesus, you are in the glory। आपको देना I am in the glory, याद रखो शब्द, इसलिए आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे ना, बुद्धि से करेंगे ना, I am in the glory, you see yourself here, not an ordinary person now, you are in the glory, you are in the glory। उसमें आप ना रहना सीखिए, माइंड को भी उधर रखिए, हालेलुया। योर स्पिरिट इज देयर ऑलरेडी, बोला महाशंकर देन ना बहुत खुश होने वाला है ये साल में, हालेलुया, आमेन। बहुत खुश, इंटेंसिफाई, मल्टीप्लाई, ब्लेसिंग, पावर, ग्लोरी आपके जीवन हमारी चर्च में हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले राजा लोग आएगा बोले पढ़ते, पहले 3 को पढ़िए ना, आइज़िया 61 का 60 से है ना, 60 का 1 राइस एंड साइन ना, कहाँ पर है वहाँ पर पढ़िए। 61 में है ना, 60 में है, ओके 1 को पढ़िए पहले। Arise, shine, for your light has come। लाइट has come, ये क्या है? धार्मिकता आ गया। हाँ बोले मेरी तरह, हाँ माइका की तरह बोलिए, हाँ बोले, कोपी बोला नहीं, हाँ अभी आ गया है तो अभी यस आ गया, आपको करना है इधर देखिए, यस आ गया, धार्मिकता आ गया, परमेश्वर का मैं धार्मिकता आने दूंगा, आ गया। अभी वो मुझ में है, बड़ी मुझ में धार्मिकता है, राइचियसनेस है, तो हेवंस आपके ऊपर है। All heaven's grace blessing has come। जैसे मरियम के ऊपर सारा अनुग्रह आया और असंभव संभव हो गया, यीशु को जन्म दिया, भाई सारा संसार युग उसको धन्य कहा। देखिए यू बिकम दैट फैमिली, हालेलुया। तो इसलिए बोलता है ये arise and shine, now light has come, you are God is new life, अभी नया जीवन, नया सृष्टि है। Always you confess yourself, I am new creation, I am in Christ Jesus। बोलिए I am in Christ Jesus, जोर से बोले I am in Christ Jesus, I am new creation, I am one with God, I am righteousness of God in Christ Jesus। इसको बोलते बोलते अकेले में बोलेंगे ना, आप डांस करना शुरू कर देंगे, वाह हेवन मेरे साथ है तो हम मेरे विरोध में कौन होगा, हालेलुया। My God shall supply all my needs in riches in glory by Christ Jesus। राजा
अभी किंग को पहले राजा लगाएंगे। The Gentiles shall come to your light, and the kings to the brightness of your rising. हाँ, अब इस ग्लोरी में रहेंगे, इस विश्वास में रहेंगे, रहिए इस विश्वास में रहिए। हेवन कम कर रहा है आपके ऊपर ना, अन्य जाति लोग भी आएंगे, राजा लोग भी आएंगे, राजा लोग आएंगे। वो खबारा शानदार, चलिए खड़ा हो जाइए। हालेलुया। हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। ओ राबा शाताला बराबा, ओ खबारा राबा, उठिए उठिए उठिए, कराबा शाताला, जोर से प्रार्थना। 2 मिनट हम लोग प्रार्थना कोरियाला कासा, जोर से अन्य भाषा में। ओ खबा शाताला बराबा, हे निशातोला बराबा साला बराबा, रबा खोलो बड़ी, सरी धुरी खडाला खारो खालारा, हे रथोले रे सारा बराबा, जोर से ओ खबारा पाला बराबा। आज ऐसा प्रार्थना करें जैसे योर लाइफ डिपेंड अपॉन दिस प्रार्थना, योर लाइफ डिपेंड अपॉन दिस प्रार्थना। सीरियसली ओ खबा शारा टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी और बराबा ताला, अपने जीवन का रेस्पॉन्सिबिलिटी नीचे खुद बीते लेबा। आखरा शाताला बराबा, कतो दिप्रिशतो रिबा, हरना खुटोला पर खसलो, हरला बराबा नी, हेरे बेसोको सरबितु, अपर खसला पर खसोतो देते, हेरे बेले हिला खसरा पर खसोतो, ए बेले बेले खुसो खसरा पर खसा, ए खसरा पर खुसो कोतरा पर बसोतो, हेरे बेले कोतोला पर खसा हर खसा, ए कुरी बिजबि शंदरा, योरा पर खसोतो, हे रासा रासा था, पर खुसला पर खसाता, हरला खुटुली बा खसला पर, रे हितु खसा खसा कता, ए पर खसाला, रे हितु खुशाली खंडुलो, अपर कतला पर खसोतो, हरला खुसो कोतरा पर खसो, हे बेले खुसो कोतरा पर खसो, बा खसला पर खुतु, हेरे बेले या रासा, मोरी बेले खसोतो तो, हाको शेली बेले, हेरे बसोको तरवा, handala brekoso to kotorbe, araba keep going, we still time, mukholi, don't close your mouth, o khar mukho kholi, raba khuta la baraba, eri bishako ta bakatra bata, rasuli hisara, rahla baraba, raso holaba, hakoto la brebetu le brekoso kotor, aba hasara ko, rebeto la brebeto, rebeso horobe, he reshato toro, rebele kasa horobe kasoto, rebele koto rebreko, he kosara baraba, hallelujah. Glory to God, hallelujah. Oh, Karabalaba Shandalaba, hallelujah. Glory to God, hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, in Jesus' name, hallelujah. आप ऐसे प्रार्थना करते रहिए मंडली। देखिए बहुत बड़ा महिमा होगा इस चर्च में, हालेलुया ना। लंगड़ा चलने लगेंगे, मुर्दा जिंदा होने लगेंगे। इट्स गोइंग टू हैपन ना। मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा फ्रीक्वेंटली, एक दो नहीं, फ्रीक्वेंटली मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। ऐसे समय आ रहा है। तब दिल्ली कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा दिल्ली? कहाँ भागेगा दिल्ली? बोले कहाँ भागेगा दिल्ली? The Savior Church आ गया इधर। Hallelujah. Glory to God. Yes, keep praying, keep trusting. अभी ऑफरिंग करते हैं। Yes. Hallelujah. Glory to God. कोई गीत गा दीजिए। तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में